There is a LED light. इसका नाम क्या है इस बॉक्स के ऊपर का? ये टच पैनल है. हाँ Touch panel connected with PLC. ठीक. And there is an analyzer, oxygen and moisture in the top side. You can see the oxygen one. Behind this, there is a moisture analyzer. And the readings are CN1 coming. analyzer. Yeah. What is that meaning called? CN1 analyzer. Oxygen analyzer. Oxygen analyzer. Oxygen and moisture. Both are in the top. And Yeah. pressure there, it is detecting from the gauge reading, delta P. Mhm. So having some delta P reading. So that is. There is a pressure gauge inside. अच्छा inside. Yeah, is- yeah. Okay. The box pressure is 1 millibar from the atmospheric pressure because it is in a overpressure mode. Okay. Which if it shows 1 millibar, it is overpressure. Yeah. Plus, if it is in the plus, na, 1 millibar plus, Okay. then it is overpressure. Okay. Plus are outside. In a under pressure, it is in a minus. The gloves are inside. But it is different here. We can use only in a overpressure mode. This model, GV Campus. Okay. There is a big antechamber. This is called big antechamber. Hmm? This is called big ante. Big, yeah. Yeah, main antechamber, whatever. Big and Big. 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 big Big and antechamber. Yeah, main antechamber you can say. This is a small antechamber. This is the small. There is a safety valve which is called oil bubbler. oil. Oil bubbler. And the reactor is behind the box. You can see from this side. There is a reactor. It is of 8 kg. 8 kg. 8 kg. 4 kg is filled by molecule sieves, and 4 kg is filled by copper catalyst. 4 kg molecular. Sieves and 4 kg. 4 kg copper and 4 kg copper and 4 kg molecule sieves. क्या सिक? Molecular. MOLE. Means कौन सा molecular? मॉलिक्यूलर सीट वो मतलब क्या कौन सा होता है? सीट? नहीं, molecule sieves तो ये for absorbing water ना. वो तो कॉपर कर रहे हैं, कॉपर कर रहा है वो कॉपर absorb ऑक्सीजन को कर रहे हैं, अच्छा वाटर को नहीं. Okay, so copper is for absorbing oxygen and molecular seeds are absorbing moisture. Moisture. मॉलिक्यूलर शीट जो सिलिका से बनता है क्या? सिलिका तरह उसी की तरह का होता है, लाइक सिलिका ना, जैसे नॉन ऑर्डिनरी आप इसमें ये मॉइस्चर रिमूविंग के लिए यूज होता है ना, हाँ। पैकेट सा रहता हाँ, है, वैसा ही होता है. अच्छा हम देसी केटल में सिलिका यूज करते हैं. हाँ, जब वैसे ही रहता है वही सेम ही है वो. So everything is given here. When we press manipulation, there is a flushing. Why we do flushing and how do we flushing here? Okay, can you go to the home first? Yeah. First manipulation. When we select manipulation, Okay. there is a flushing, and why we do flushing and how do we do? Okay. It is already given here. The gas flushing system enables to flush the glove box with inert gas. Why? The method is useful initially during the glove box installation to inert the glove box before starting the purification process. Because जब स्टार्टिंग में जब
we install it, no, it is open. There is no gloves attached with the box, so air goes inside. First we have to remove the air initial stage when we install it, no. In case of air pollution into the glove box, for example, due to wrong vacuum chamber manipulation, to quickly decrease oxygen and moisture contents. Sometimes here, by chance, by mistake, someone open the box, anti-chamber from inside, and someone open from this side, then air will goes inside. To remove this air, we have to do flushing for 5 to 10 minutes. First time in an initial state when we start the That time also. yeah, when we assemble the box, and at that time we install complete one. We use one complete cylinder to remove the air from the glove box. Flushing is to be done every time whenever when we are using this instrument. When we are using the anti-chamber. Okay. Whenever we are opening and putting our sample in, we have to flush it. Flushing 5 to 10 minutes. It is good for the reactor. Both anti-chambers. Yeah. It is not recommended, but it is better for the reactor life. Otherwise, you always, after 3 months, you have to regenerate the reactor. But by mistake, if someone open the door from inside, then it is must. At that time, you have to do flushing. This 5 to 10 minutes is sufficient. Yeah. We have to wait for this. Yeah. Everything is given here, no? If the value is getting down, then you can stop it. Maximum 15 minutes here. और इंस्टॉलेशन के टाइम में हम कितने टाइम लगाया था 1 hour 2 hours At the time of installation, it depends on the gloves box size. It is around 1 meter cube. You have to use the gas 5 times more. अच्छा. 5 meter cube, approx 1 cylinder. And then there is a reactor regeneration. Reactor? Regeneration. I show you the reactor behind the box. When we are not selecting the reactor regeneration, but why we use it is given here. Why is it necessary to regenerate the installation? During the purification process, the reactor progressively removes oxygen and moisture from the glove box. जब प्यूरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या है, वो जितना भी उसमें मॉइस्चर रहता है वो एब्जॉर्ब करता रहता है. वो एक टाइम आ जाता है जब प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कैन नॉट बी अचीव्ड व्हेन द लोड्स आर सैचुरेटेड. जब एक बार वो पूरा सैचुरेट हो जाएगा, मतलब उसकी कैपेसिटी है, मॉलिक्यूल सीव्स का कैपेसिटी है 20 लीटर्स, जो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा. ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया तो रीजनरेट करना पड़ेगा. और आपको उसके लिए ये रहेगा, आप जब पीपीएम लेवल देखेंगे तो वो बढ़ा हुआ होगा. जैसे नाउ मतलब 1 मिली बार है, 1 मतलब पीपीएम लेवल आ गया इसका ऑक्सीजन का, मॉइस्चर का भी 1 पीपीएम आ गया. और समटाइम्स क्या वो 10 to 15 चला जाएगा और आप फ्लशिंग भी कर रहे हो, डाउन नहीं हो रहा. तो इसका मतलब है कि वो रीजनरेट करने की ज़रूरत है. और ये डिपेंड्स करता है कि कितना, मतलब आप कितना यूज़ कर रहे हैं इसको. फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं तो 6 मंथ में होगा, कम यूज़ कर रहे हैं तो 1 ईयर होगा. और कितनी बार आप ये एंटी चैम्बर को ओपन कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है पूरा. When starting of regeneration, the regeneration is to be launched when oxygen and moisture concentration are slowly and gradually inside the मतलब rises. धीरे धीरे बढ़ने लगेगा ना. उस समय करते हैं इसको. ये ब्लोवर है. ब्लोवर क्या है, ये जब हम फर्स्ट टाइम हम इसको इंस्टॉल करते हैं, फ्लशिंग करते हैं. फ्लशिंग के बाद हम क्या करेंगे, एट द टाइम ऑफ फ्लशिंग रिएक्टर आर आइसोलेटेड फ्रॉम द ग्लोव बॉक्स. जो पीछे रिएक्टर है, 2 मैनुअल वॉल दे रखे हैं टॉप और बॉटम में उसके. उस समय हम फ्लशिंग करेंगे तो वो रिएक्टर उससे आइसोलेट रहे बॉक्स से. खाली जो इसके अंदर एयर है वो खाली रिमूव करेगा. उसको रिमूव करने के बाद क्या रहेगा, अब हमें उसको और प्यूरीफाई करना है. उसको जो गैस है उसके अंदर उसको प्यूरीफाई करना है. हम फ्लशिंग क्या करते हैं, जैसे कि 500 ppm आ जाए. No, I cancel. You understand? Yeah. So how much time we need to do flushing? Around 1 cylinder. We use 1 cylinder, complete 1 cylinder, and we also watch out what the ppm level. If it is less than 500 ppm, 500 ppm for both oxygen and moisture, then we can stop flushing.
and start the purification. For starting purification, first we have to stop the flushing, then open the reactor 2 valve. When it will be so high, 500 ppm, at what time it will be so high? Because now it is around 10 ppm, 15 ppm. No, now purification is going on. Right now, purification is going on. If in future, if someone open, if you are keeping some big instrument inside, open the front panel. Then first First you need to do flushing here. And how much time you need to do 1 cylinder. 1 cylinder, and the ppm level should be less than 500 ppm for both oxygen as well as moisture. ठीक है, उसके बाद उसको बंद करके हम इसको प्यूरिफिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं. प्यूरिफिकेशन के 500 आ गया, उसके बाद रिएक्टर को ऑन कर देंगे. रिएक्टर को ऑन किया है, इसके ऊपर 2 वॉल्व लगे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, टॉप में और बॉटम में. दोनों को ओपन कर देंगे. इसमें ब्लोवर लगा हुआ है. ब्लोवर क्या करेगा, उसको पुश करेगा, जो गैस है, जो अपना नाइट्रोजन गैस है, उसको पुश करेगा, वो सर्कुलेट होगा. यहाँ से रिएक्टर में जाएगा, रिएक्टर से इधर आएगा. ये पहले नीचे से आएगा, फ्लशिंग के टाइम में क्या गैस ऊपर से आएगा और यहाँ से निकल जाएगा बबलर के थ्रू. मगर उसके प्यूरिफिकेशन के टाइम में वो नीचे से गैस आएगा और इसके थ्रू सर्कुलेट होता रहेगा. वो तब तक वो गैस और यूज़ नहीं करेगा जब तक आप इसको यूज़ नहीं करेंगे. जैसे मैं ग्लव्स, इफ आई यूज़ द ग्लव्स ना, insert my hand inside here, the gas will flow from this side, from bubbler. देखिए जैसे मैं इसको करूँगा ना, कुछ गैस निकलेगा. तो क्या है, उसको प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ये जैसे प्रेशर देखिए, ये होगा ना 1 मिलीबार, ये देखिए 1 मिलीबार से कम होगा, वो गैस नहीं लग जाएगा सिलेंडर से ऑटोमेटिकली. समझ गए ना? तो उसको प्रेशर को मेंटेन करने के लिए वो गैस लेगा और तभी उसी टाइम पे गैस यूज़ होगा हमारा सिलेंडर से. अगर हम महीने तक इसको यूज़ नहीं करते तो सिलेंडर से गैस नहीं लेगा. पर थोड़ा ये इसमें कि ग्लॉस में हर जगह पे थोड़ा लीकेज रहता है, पूरा लीक प्रूफ कुछ नहीं है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा रहता है, तो हल्का बोल गैस मतलब यूज़ होगा, अदरवाइज नहीं होगा. सो मतलब राइट नाउ प्यूरिफिकेशन इज गोइंग ऑन. Generation. No. When we stop the purification, we first stop the blower and close the reactor valve. Okay, how you know at what time you have to stop the blower? नहीं, it will continue run. Every time it will run in a purification time. Purification. You need not to stop this one. Okay, always If you- blower will be on. Yeah, always. Reactor and blower will be on. But when we regenerate the system, we have to isolate the reactor, So that time, then and stop the blower. okay. Only while regeneration. Yeah, only. In the flushing also the blower will stop. नहीं, इनिशियली स्टेज में उसको ब्लोवर को बंद रहेगा, रिएक्टर वैसे रहेगा इनिशियली. Okay, initially. बट इफ यू यूज एंटी चैम्बर, नो नीड टू क्लोज द ब्लोवर एंड क्लोज द रिएक्टर. Okay, now onwards you don't need to stop Yeah, the blower. It will- no, yeah. And how will you know that the purification is done? By No. this reading only? No, it will Yeah, yeah. automatically go. No. You don't need to No. even stop. I'm telling you. Yesterday how it will was around 100 ppm moisture, and oxygen is also around 50 ppm. So just because of purification is getting down, the ppm level is getting down just because of purification. Blower is throwing the gas into the blower and it is purified, then again it is in a closed loop. But when we use the gloves, it takes more gas, but it is not 100% pure cylinder gas, so it remove all the moisture and oxygen, and then the ppm level goes down to 1 ppm. अगर नहीं समझ आ रहा पूछ लीजिए मेरे को. अगर नहीं, एक बार तो आप डेमोन्स्ट्रेशन तो देंगे ना. मैं करके दिखाऊंगा कैसे हाँ, होता है. करके. क्योंकि अभी ppm लेवल तो मैं इसको कर नहीं सकता मैं आगे ज़्यादा. ये है कि जैसे वो एंटी जम्बर वगैरह यूज़ करेंगे, बढ़ेगा कैसे करना है वो मैं हाँ. अभी शुरू में कंफ्यूजन रहेगा वो थोड़ा, हाँ, मगर ठीक आपको मैं बता दूँ. नेक्स्ट वन इज सेटिंग. व्हेन वी सिलेक्ट सेटिंग, a concentration alarm, it is just a visual alarm. If you keep it, the oxygen level goes above 10 ppm, then it will glow, or as well as moisture level 10 ppm, otherwise it will not. It will actually indicate what, any sound or just No, it's a visual alarm. Visual. Yeah, just I show you then.
if I keep 0.5 ppm. नहीं 8 कर सकते हैं इसको, then it will show the indication like that. Right. Right. How to identify that? I mean, now red is showing. I want to नहीं, see. I have kept in 8 ppm, 8 ppm. but it is above than 8 ppm. Yes, yes. So it is showing. So in future, if we keep it in a, if I keep it in a 2 ppm, because it is more than 2 ppm, na? If left and No, it's 9.3 ppm. नहीं, if it Keep it 10. 10 रखेंगे तो बंद होगा, देखिए ये, ठीक है, no it is not showing anything, it is just for मतलब indicator, like indicator ना, okay. Concentration. otherwise value shows itself ना, if it is increases 10 ppm then you can know the level is getting higher, then you can do some flushing or there is a need to do regeneration. Glow box pressure, while changing the cylinder it should be, low limit should be 0. When the cylinder is empty na, you need to change this one, change the cylinder, so at that time always keep it in a 0. Okay, while changing cylinder, I have to Uh, set it to 0. 10 to 0, low limit. Low limit is Mm. okay. You cannot change this one. High It is factory with the set by default. It is set. How just press on 0 that will okay. Yeah, just 3, then we go. Like that. So by default, what will be the its pressure? By default, what is will be the lower? 10. Okay. By default, it is 10. Otherwise, it will take air from the atmosphere. If it is 10, you are changing the cylinder, it will take gas from the air. So suppose I want to put 0 glow box pressure 0 0. RDT this one. Enter. This is enter. Yeah. Okay. And it is 0. Okay. While But operation, after changing the cylinder, you need to change the value 0 to 10. what will happen if it is 0? It will not take gas from the cylinder. It will Okay. not take gas from the cylinder. This is about the chamber. 10 10 mm. no? mm is 2. It is equal to 1 millibar. Now there is a transmitter. It is also by default it is setted by the company Jacobins. We don't need to anything. No need to test this. Any caution or any warning in the change of reading, or it won't change? No, it never changed. What does that mean? This minus 100 degree centigrade DP, 20 degree centigrade DP. It is a range of the moisture sensor. It is kept in. minus 100 degree centigrade में तो moisture ही नहीं रहेगा ना? नहीं, ये 100 की DP है कुछ ये ना. PPM no, it is not in a PPM. It is in a DP. I think we can change. ये तो this. टेम्परेचर है minus 100 डिग्री सेंटीग्रेड. 100 डिग्री से minus 100 नहीं में नहीं 1 minute. मतलब कोई स्नो भी होगा तो वो भी डिटेक्ट कर लेगा क्या? ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है. DP का देखिए अलग है, PPM लेवल अलग है. माइनस का अगर हम इसको PPM में इसको चेंज करते हैं ना, चलो मैं आपको शो करता अच्छा हूँ. ठीक है ठीक. इट इज ये है PPM में है, ठीक है ना. राइट नाउ इट इज PPM. इसमें होता है कुछ सिस्टम. DP is different from the PPM. ओके वैसा concentration है नहीं. हाँ. So you need not to change this one. I will show you. Analyzer transmitter हो गया ना ये, ठीक है. This is the pressure. This is the capacity of the electromagnetic valve. ये pressure sensor. ये pressure है ना. But we have set it in a 1 millibar low limit and high limit 3 millibar between. Capacity of Pressure sensor. But we have set it in a 1 millibar or 3 millibar low limit. I showed you na, 10 mm H2O. It is equal to 1 millibar.
This is an analyzer. Which analyzer are installed? It is just showing an indicator, like indicator. We have installed both. You missing if you are not using this one. If I press missing, then it will not show Okay. the oxygen. Okay. Then third one is option. Graphic record of concentration. It will record your last 2 months data. Okay. After that, after 2 months, one by one day, It will delete. yeah, it will delete and it It will will. let out. Can we process the data directly from here? Sorry, Can no, we process the data directly You from can't no, get no. this. It is just a record. Achha. Process data is not required, I guess. Not required, I guess. हाँ, उसका जरूरत कुछ नहीं है. अगर आपको देखना चाहते हो लास्ट 2 मंथ का, आप ऐसे ही देख सकते हैं. नहीं मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ उसको मतलब प्रोसेस नहीं कर सकते नहीं, इसमें इसमें नहीं है, दूसरे में है. डेस्कटॉप PC में में या convert किसी में हाँ, इसमें नहीं है, दूसरे में है. वो उसमें USB वगैरह में आप करके ट्रांसफर करके रख सकते हैं. इस सिस्टम में नहीं, इस वाले मतलब मॉडल में. ये ऑप्शन क्या था आपने बताया ऑप्शन ग्राफिक्स. ग्राफिक्स ऑप्शन में जाके ग्राफिक्स ना कुछ इसमें 3 ही दे रखे हैं एक्चुअली ना. मैनिपुलेशन, सेटिंग एंड ऑप्शंस. तो फर्स्ट मैनिपुलेशन में फ्लशिंग है रिएक्टर, ये. देन सेटिंग ग्राफिक्स ये है. थर्ड वन इज ऑप्शन ग्राफिक्स. फेलियर्स का मतलब ये रहेगा कि आपने जैसे पीपीएम लेवल 10 या वो रखा है 2 पीपीएम रखा हुआ है. अगर वो बढ़ जाता है तो आपका रिकॉर्ड रहेगा क्या क्या उसमें जो हुआ है. ये किसके साथ वैरी करते हुए दिखाई देगा मतलब ये देखिए नहीं, ब्लू कलर का ऑक्सीजन दिखा रहा है, ये मॉइस्चर का दिखा रहा है. तो पीछे जाते रहेंगे ना, देखो टाइम और डेट वाइज नहीं इसमें आता रहेगा. मगर एक्चुअली में देखिए इसमें कोई वो नहीं दे रखा कि काउंटिंग है वो. हाँ कि वो आपको तो ग्राफ हाँ, खाली एक वैसे ही बना रखे सिंपल सा ग्राफ. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसका कोई कुछ नहीं है PPM नहीं, रिप्रेजेंट तो देखो ये कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है और ये मॉइस्चर कर रहा है. नहीं ये क्या अब ये कितना है PPM में ही आपको? दे रहा है क्या ये जो पिक जो दे रहा है ये पीपीएम में ही रिप्रेजेंट कर रहा है पीपीएम में ही है, मगर कितना है आपको देखिए ये 1, अगर हम इसको नहीं, 1 वो मानते तो- हैं, हाँ, वो तो वो नहीं आपको कर करना है. सकते वो चीज़ है पीपीएम में ही है, ये शो कर रहा है. क्योंकि जो भी डेटा है वो पीपीएम में ही रिकॉर्ड बैक करेगा. करने के लिए ये वाला ना हाँ, इसमें नंबर तो देने चाहिए ना उसका. नंबर मगर आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3, क्योंकि वो तो खैर अलग बात है बट क्योंकि हम और ये इसको डेटा हम तभी हम रिकॉर्ड plus कर रहे हैं कि minus आफ्टर plus minus फ्लशिंग माइनस और प्यूरिफिकेशन. क्योंकि उस समय की वो ज़्यादा नहीं रहेगा डेटा ना. जूमिंग आउट नहीं डेटा अलग है वो मुझे नहीं है बट इनसे अगर रेंज हमें देखना है कि ये किस रेंज से किस रेंज तक आया, वो तो जब तक यहाँ वैल्यू नहीं होगी, यूनिट नहीं होगी, तब तक कुछ ये तो नहीं. कुछ भी हो एक्स सकता है ना एक्सिस का टाइटल होना चाहिए, वाई एक्सिस वही ना इवन वो भी सिंपल जैसा है ये. सिंपल में ये मगर तो इसका basic फायदा भी चीज़ नहीं है ना. इसका इतना कुछ. फायदा नहीं है तो डालेंगे उसको. क्योंकि जो अदर मॉडल है ना उसमें तो यूएसबी वो भी दे रखा है पोर्ट, उसमें आप लगा के ट्रांसफर कर सकते जब हैं. इसमें इतना दे रहे हैं तो बेसिक एक्स हाँ, एक्सिस वाई उसे- एक्सिस देने में क्या है, हाँ पूरा प्लॉट वही के बाहर तो है ना तक दे ही दिया तो एक्सेस दे ही देना था टाइटल. अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता. क्योंकि ये तो 1 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है 10 भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है ना मगर 1 के हिसाब से शो कर रहे वो हैं. तो फिर सब अप्रोक्सीमेशंस अजम्पशंस है. ठीक है एफ ऑप्शंस फेलियर्स फेलियर्स का ये है कि वो रिकॉर्ड शो करेगा. जैसे आपने 10 ppm रखा है, 5 ppm रखा है. इफ इट एक्सीड टू 5 ppm देन इट विल शो कि एट दैट टाइम डेट आएगा. How many times हाँ, it was. हाँ, वो रिकॉर्ड में आ जाएगा उसमें कितना आ गया. मैक्सिमम से कब एक्सीड हुआ है वो बताइए हाँ, वो show. वैसे कितना बार एक्सीड होने से सेफ रहेगा नहीं, सेफ तो मतलब अगर आप 1-2 बार का उसको कर लेते हैं, अगर एक्सीड हो जाता है, आप फ्लशिंग कर रहे हैं, उसके बाद नहीं आ रहा तो उसका मतलब उसको रीजनरेट करना है. अच्छा फेलियर में क्या दिखा है आपने इसमें डेट टाइम डिस्क्रिप्शन आ जाएगा कितना है. मतलब अगर कोई एनालिसिस फेल हो लॉग गया है या फिर फेल कब कब हो रहा है, एक्सीड कब हो रहा है, लॉग है. ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो जाएगा ना हम्म.
बेटर है कि मेंटेनर लॉग बुक लेके कि डेली आप कितना है कितना यूज़ करा, सबसे बेटर ये है। किस टाइम में कितना करा, क्या पीपीएम लेवल था, दैट इज़ बेटर। देन देयर इज अ डेट एंड टाइम सेटिंग, यू कैन चेंज द, अगर मैं स्टार्टिंग कुछ नहीं है वो टाइम, और उसको अगर करना है इसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे वो डेटा। ठीक है। लैंग्वेज अपना थोड़ा और देखा, कॉन्ट्रास्ट ये वो 100% पे 80 में कर सकते हैं, 50 में जितना भी करना है। ये डिटेल्स है, अगर हम में से कोई फ़ोन नहीं उठाता तो डायरेक्ट कंप्लेंट करके कंप्लेंट ये पूरा एड्रेस और फ़ोन नंबर, फैक्स, ईमेल वगैरह जगह मिक्स करके रखते हैं। फैक्ट्री सेटिंग setting तो नहीं। इसमें नहीं करके फिर दोबारा से वो जो सब कुछ पूरा हाँ, एकदम नया जैसा हाँ होगा। हो जाएगा। तो उसका स्क्रीन सेवर है, कुछ नहीं है, ऐसे लगेगा कुछ नहीं टच। सो मतलब हम लॉक बॉक्स हम भी जब भी यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग में हम फ्लशिंग करते हैं जब नया रहता है, तो उसके लिए 1 कंप्लीट सिलेंडर यूज़ करते हैं और प्रेशर रहता है 1 मिली बार, 1 बार। ऑपरेशनल प्रोसीड्यूर पूरा मेरे को बता दीजिए सही से। सबसे पहले क्या करना होगा हम? सबसे पहले जो अभी करा है मैं वही बताता हूँ, और क्या करना होगा इन फ्यूचर वही बताता हूँ। सबसे पहले जैसे बॉक्स है इंस्टॉल करा है, इसके बाद फ्लशिंग करेंगे हम स्टार्टिंग में। फ्लशिंग करेंगे जो जितना ग्लो बॉक्स का वॉल्यूम है उसका 5 टाइम्स, मतलब 5 मीटर क्यूब और 6 मीटर क्यूब उसका सिलेंडर का प्रेशर वो रहता है उसमें गैस, तो 1 सिलेंडर कंप्लीट सिलेंडर से एनफ फॉर फ्लशिंग। और सेम टाइम आपको ये देखना है व्हाट इज द लेवल ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, इट शुड बी लेस देन 500 ppm। Okay. If it is getting down 300 200 it is better for us। Before changing the cylinder, I have to set 0 for. हाँ When changing low box pressure should be 0. वो अभी नहीं, वो तो एक फ्लशिंग चीज समझ में नहीं आ रहा है, फ्लशिंग के समय 500 मिलीग्राम पर लीटर से नीचे होना चाहिए, 500 ppm का। हाँ फ्लशिंग मतलब जो स्टार्टिंग में जब इनिशियल स्टेज पे करते हैं, अदरवाइज जब भी आप फ्लशिंग करेंगे तब तो 10 भी 15 भी होगा, हाँ तो तब भी आपको फ्लशिंग करना तो रहेगा। इनिशियली आप जस्ट इसमें स्टार्ट किया तो क्या ये 500 से नीचे ही था? नहीं इसका तो कल मैंने कंप्लीट सिलेंडर यूज़ करा, ये तो 1000 में शो कर रहा था हाँ। मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन हाँ तो बोथ। उसको 500, हाँ तो उसको फ्लशिंग करेंगे ना तो एयर रिमूव होगा, तो उसके साथ PPM लेवल हाँ, नीचे आता तो रहेगा। अभी तो वो 500 जो आप बेंचमार्क बता रहे हैं उसका सिग्निफिकेंस क्या है? वो तो अभी भी चल रहा है ना 0.7 8.6। ये ये इनिशियल स्टेज में जब इनिशियली आप मतलब फ्लशिंग करते हैं तब 500 का रेंज है, अदरवाइज नहीं है। अदरवाइज तो अभी ये 0.8 कर रहा है और 8.5 ये जो कर रहा है। हाँ, अगर आपने ये बताया कि वाटर का 10 से नीचे होना चाहिए या 5 से नीचे होना चाहिए और ऑक्सीजन का 1 से नीचे होना चाहिए। मैं यही पूछ रहा हूँ कि वो 500 का सिग्निफिकेंस क्या है? जब मैं स्टार्ट कर दूँ तब तो कुछ भी हो सकता है, तो उससे मुझे कम करके ऑक्सीजन को 1 से नीचे लाना है और मॉइस्चर को 5 से नीचे लाना नहीं है। हमेशा ही जैसे अगर इस समय जो वैल्यू शो कर रहा है ना, आप चाहे 10 दिन बाद भी यूज़ करें तो इतना ही रहेगा वो। हाँ वो स्टार्टिंग में कि एयर इसके अंदर होता है तो वो इंक्रीज करके रखते हैं, तो इसका उनका एक उन्होंने वो एक पैरामीटर सेट करा है, अगर 500 से नीचे होगा तो हम रिएक्टर खोल सकते हैं, अदरवाइज उससे ऊपर होगा अगर खोलेंगे तो वो सैचुरेटेड हो जाएगा वो रिएक्टर। यही बात। और अगर वो आप एक कंप्लीट सिलेंडर यूज़ कर लेते हैं तो उसका मतलब है कि उसने वो अगर वैल्यू अगर आप नहीं भी देख रहे हैं तब भी वो 500 से नीचे आ जाता है मोस्ट मतलब मोस्टली। फ्लशिंग के लिए इसका आपका सिंपल सा इसको सिलेक्ट करके फ्लशिंग है, इसको स्टार्ट कर दीजिए इसको। Post flushing. ये टाइम आप चेंज कर सकते हैं, ये नहीं कि 2 आवर्स लिखा है तो आपको 2 आवर्स ही करना है, आप 10-15 मिनट जितना भी आपको करना है वो कर सकते हैं, स्टॉप कर देंगे 10-15 मिनट का। Means अगर when I हाँ। loaded sample into that, immediately I go for flushing just for 10 minutes. हम्म। Then I can stop. So It will manipulation automatically get stopped, no? With 10 minutes. फ्लशिंग। नहीं इफ यू सेट द टाइम 10 minutes, then automatically. ऑटोमेटिकली। अच्छा यहाँ पे 2 minutes बाद. तो इसको 0 करके इसको कर दीजिए, इसको एक ही मिनट कर दीजिए 1 मिनट।
इसको बैक नहीं कर सकते? नहीं होगा, ये एस्केप करेंगे, Escape, बैक escape. होगा इधर से। इसके इसको 0 कर दीजिए, इसको Zero. ठीक, इसको बंद कर दीजिए 1 मिनट, एंटर, अब स्टार्ट यहाँ पे ना? कर दीजिए। That will automatically Automatically. release the control, means that reactor from while flushing. नहीं, it is just if you open this one na, if the air goes inside, it is just flushing out the air. Okay. Reactor That is time actually open. reactor is open. Yeah. But will not This- operate. No, you It will not need not to close the reactor, Okay. stop the blower. It will It automatically. it is like a force Okay. flushing here, just for a temporary. Hmm. अच्छा, ये जो फ्लैश The gas is going out from the oil bubble. ओके। Yeah. अच्छा, फ्लैशिंग जो हो रहा है वो क्या यहाँ से भी नहीं, निकल रहा है? खाली बॉक्स का हो रहा है। बस बॉक्स का ही हो इसका रहा कुछ नहीं हो रहा है। इसका फ्लशिंग करने के लिए इसका नहीं करना? इसका फ्लशिंग इसमें एक्चुअली में वैक्यूम पंप लगाते हैं, अच्छा, वो उसको वैक्यूमाइज करते हैं, जितना भी एयर होगा उसको खींच लेगा वो। देन वही वाला है क्या वैक्यूम पंप? ये रही ऑटोमेटिक हो गया, स्टॉप हो गया। तो ऑयल बेल्ट को कभी रिप्लेस करना है क्या? नहीं, मतलब आफ्टर ईयर और 2 years मतलब इट गेट डार्क, देन वी नीड टू चेंज, अदरवाइज नो नीड। काला हो जाएगा। हाँ, डार्क। तो वो क्या चीज़ डालना होगा उसमें? क्या चीज़ डालना होगा? डाला कुछ नहीं है, ये सिलिकॉन ऑयल है सिंपल। सिलिकॉन ऑयल हाँ, इसको निकाल के दूसरा रिप्लेस कर देंगे, दे रखना है एक्स्ट्रा, आपके पास है क्या? इसमें है 1 लीटर, इससे हो जाएगा आपका। ये वैक्यूम पंप में भी मतलब यूज होता है, इसमें भी होता है। ठीक है, फ्लशिंग के बाद अब फ्लशिंग के बाद, जैसे फ्लशिंग खत्म करने के बाद आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में बता रहा हूँ मैं कि आपको रिएक्टर वाल्व खोलने हैं दोनों। स्टार्टिंग में अभी खुले हुए हैं, सब कुछ हो रखा है। रिएक्टर भाग मैं आपको दिखाता हूँ, देयर इज 2 वाल्व। उस साइड से देखने ये देखिए रिएक्टर लगा हुआ है, इसके साथ वाल्व है, ये मैनुअल वाल्व इधर की तरफ है। ये अभी वर्टिकल पोजीशन में, मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, इट मींस इट इज ओपन, गैस आ रहा है यहाँ से जा रहा है। ओके। ऐसे ही ऊपर लगा हुआ है इस तरफ को, इधर लगा हुआ है। हॉरिजॉन्टली। हाँ, अगर जब हम इसको रीजनरेट करेंगे, या अगर मैं आपके सामने अगर इसको मैं फर्स्ट टाइम ऐसे फ्लशिंग करने के बाद मैं इसको ओपन करता, मतलब फ्लशिंग कंप्लीट करने के बाद प्यूरिफिकेशन ऑन करना था इसको, बट पहले वर्टिकल में रहता है, फिर इसको हॉरिजॉन्टल करना था, जैसे अभी हो रहा है। इस समय प्यूरिफिकेशन चल रहा है ना इसमें। समझे नहीं समझे? हाँ, मतलब इन इनिशियल स्टेज ना, स्टार्टिंग में हाँ, it will be isolate from the box. हाँ, After completing the flushing process, you need to open this one. After using one cylinder, na, the moisture and oxygen level will get down. Then you need to open this one, 2 valve. Then start the blower. So after It is- flushing, we have to open the regeneration valve, no, Reactor valve. reactor valve. Both Both the top, valves. top and Top bottom. और bottom. Open मतलब horizontal. हाँ, open मतलब horizontal and close मतलब vertical. Nothing. You have to do this every time. No. Not needed. From starting, yeah. From the installation, Yeah. you have done thing. Yeah. We don't need to do anything. No. Inside of this one. But at the time of regeneration, when will you do after 6 months Okay, or after 6 1 months, 1 year? year. This is During regeneration. regeneration, you have to. Okay. You have to isolate again. Okay. आइसोलेट में पहले क्लोज करना है, उसके बाद आइसोलेट करना है। हाँ, आइसोलेट करके मतलब क्लोज करके हाँ। वॉल बंद कर देना है, मतलब ब्लोवर बंद कर देना है, तो इसका मतलब वो आइसोलेट हो गया, अलग हो गया। फिर हम खाली मतलब- रीजनरेट करेंगे तो रिएक्टर को रीजनरेट करते हैं खाली। हाँ, हाँ, और रिएक्टर वाल्व को ओपन करके ब्लोअर को स्टॉप करना है ना, यही तो करना है बस। ओपन करके ब्लोवर को स्टार्ट करना है, स्टॉप नहीं करना। स्टॉप, हाँ सॉरी, स्टार्ट करना तो ब्लोअर का एक ही पर्पस है, वो जो push- नाइट्रोजन है उसको पुश करके रिएक्टर में डालना है। नाइट्रोजन इसको साफ कर देना है। जो पहले फ्लशिंग में नाइट्रोजन यूज किया था उसको साफ करना है। नहीं, फ्लशिंग में तो फ्लशिंग का मतलब है जो इसके अंदर एयर है हाँ। वो सारा रिमूव हो रहा और है नाइट्रोजन से नाइट्रोजन से। हाँ। जो नाइट्रोजन है वो भी प्योर है, 99 पॉइंट कुछ हाँ। 99 UHP हुआ है। हाँ। तो उसके बाद जो है कि उसके बाद भी एक ppm लेवल आ जाएगा 100 या 500 के, जैसे मैंने 500 आपको जो आप बोल रहे हाँ। हैं 500।
या 50 भी आ गया, वट आ गया, उससे नीचे नहीं आएगा, जब तक नहीं आएगा जब तक आप उसको रिएक्टर में नहीं डालेंगे गैस को। तो वो जो आप ब्लोवर से करेंगे वो ब्लोवर से तो फ्लशिंग ऑफ करने के बाद फ्लशिंग ऑफ करने के बाद ब्लोवर के लिए भी, जब ब्लोवर को भी मैनिपुलेशन में जाके स्टार्ट, जैसे अभी मैं बंद कर रहा हूँ, स्टार्टअप ब्लोवर आएगा तो इसको ऐसे ही करना है, स्टार्टअप ब्लोवर। अब इसमें लिखा हुआ आ रहा है, देखिए ये स्टार्टअप करेंगे ना, स्टार्टअप ब्लोवर आ रहा है, बिफोर स्टार्टिंग द ब्लोवर मेक श्योर द आइसोलेशन मैनुअल वॉल्स फ्रॉम द रिएक्टर आर ओपन, देन यू विल स्टार्ट द ब्लोवर। ब्लोअर अभी क्या